Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are welcome at this very learned program. This is called Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. This is a complete e-learning app. You will get maximum benefit out of this. Today, my dear student, we are to start an activity that is called free content activity. The purpose behind this activity is to bring your attention towards this important thing so that you may avail of the opportunity of NMD CAT preparation. Dear students, we have to penetrate the discussion of this test now. Look at the very important topic, subject verb agreement, and relating to this topic we have to discuss the test code E2 discussion. Now let's start it. Look, the very first MCQ is on the screen and the instructions. Before we start discussion about the very first MCQ, we have to focus on the instruction. The very important thing, before we start anything, we must know the instruction, how to do it, how to tackle the particular MCQ. Now the instruction is on the screen. Choose the word that has the error in the following sentences and fill the circle corresponding to that letter in the MCQ response form. Okay, now the MCQ is about to float. Very first MCQ along with 4 possible options, because this is an MCQ, it has been underlined at 4 different places, and I have given all these underlined areas the name of an option: alpha option, beta, Charlie and delta, and we have to detect what? We have to detect actually the error, where the error occurs out of the 4. And now if we have successful enough, if we have success regarding finding out the particular error in any one of the 4 options, we will be successful in actually securing a good score, because the error detection is actually the success. Now look at the first MCQ. We are about to read it in a way. The commander as well as his soldier was there to attack. My dear student, we have to focus on some of the things. Look at it. The commander, this is actually the first noun. It is a noun 1. Okay, this is a noun 1, as well as this is actually a thing that connects 2 different types of nouns. The second noun is his soldiers, and now this is noun 2, his soldiers. Dear students, the connector between the 2 different nouns is as well as, which is in a block. और इस connector का काम क्या है? Whenever as well as comes, this is actually a connector. Whenever it comes in between 2 different nouns, 2 different entities, then we have to give the value to the very first noun. If it is singular in its respect, in its function, then we have to go for a singular verb. And if it very first noun is in plural, formation, function and nature, then we have to give the verb accordingly. Okay, now look at the very first noun. Noun 1 is singular in its nature, the commander, and that's why we will go for the singular verb. The commander, this is a bridge with the verb. The commander as well as his soldiers was there to attack. Okay, there is no problem at all here. Now each of his soldiers, whenever the word each or every, each is actually an indefinite pronoun. Look at it, indefinite pronoun. How many types of pronouns are there? You know, these are 11 in number. Pronouns की कितनी types हैं? 11 हैं, और उनमें से एक type indefinite pronoun कहलाती है. Each भी उसी कैटेगरी में से है, क्योंकि एक लिस्ट है each की, every की, either की, neither की, nobody की, somebody की, anybody की, जितनी भी बॉडी हैं उन सब की जो लिस्ट है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में फॉल करती है. तो जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ईच, एवरी वगैरह, उन सब को आप सिंगुलर कंसीडर करेंगे. क्या कंसीडर करेंगे? वो सिंगुलर एंटिटीज होंगे, सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, और सिंगुलर प्रोनाउन रिक्वायर करेगा सिंगुलर वर्ब. ओके,
ईच ऑफ हिज सोल्जर्स, याद रहे कि ईच के बाद हमेशा जो है वो प्लूरल नाउन आएगा। ये इस वक्त सोल्जर क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है, ये एक प्लूरल नाउन है, यानी ईच और एवरी के बाद जो नाउन आना है वो प्लूरल आना है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आना है। ईच के साथ आप ब्रिज करेंगे अब यहां पर आर को, आर तो कंपैटिबल नहीं है ईच के साथ, बिकॉज ईच इज अ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड आर comes with plural entities. That's why there is an error. In Charlie we have detected the error. क्योंकि R जो है यहां नहीं रिक्वायर, ईच के साथ is आना चाहिए। ईच ऑफ हिज सोल्जर्स is, तो यहां अगर is होता तो फिर ठीक होता। ईच ऑफ हिज सोल्जर्स is looking for absolution for his blasphemous act. So dear student, in this way we have detected the error where it has been occurred. यानी चार्ली में एरर है, तो हम यहाँ पर इसे इनसर्कल कर लेते हैं चार्ली को, बिकॉज यहाँ पर एरर है, एरर डिटेक्शन की वजह से हमने एक स्कोर सिक्योर किया है। एंड लुक, कंप्यूटर हमारी हेल्प क्या करता है, सोल्यूशन क्या है, कंप्यूटर भी चार्ली को ही एरर स्टेटमेंट समझता है, एरर ऑप्शन समझता है। तो आपने यूं एरर डिटेक्ट करना है और सिक्योर करना है अपना स्कोर। माय डियर, एक और एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। लुक, एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 इज ऑन द स्क्रीन, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट, जब आप ईदर और के साथ, मैं यहाँ ईदर को और को इनसर्कल किए हूँ और दोनों को मैंने लिंक कर दिया है, क्योंकि ये ईदर और जो हैं ये भी एक ऐसा पेयर है कंजंक्टिव एडवर्ब्स का कि जब आप, ये एडवर्ब्स हैं बेसिकली और ये कनेक्टर हैं, ये जब भी आएंगे तो फिर ये कनेक्टर क्या करेंगे भाई, ये कनेक्टर जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ, किसी एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन के साथ, किसी एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमें याद ये रखना होगा कि जब भी ईदर और या नीदर नॉर या नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ, ये सब कनेक्टर्स हैं, इनके साथ जब आप दो डिफरेंट एंटिटीज को जोड़ोगे तो फिर क्या होगा, हमने इंपॉर्टेंस देनी है सेकंड नाउन के नंबर को, सेकंड प्रोनाउन के नंबर को, सेकंड एंटिटी की नेचर, फंक्शन और नंबर को। क्योंकि अगर सेकंड नाउन, यानी कि यहां पर ही जो है, लुक, ही सिंगुलर है, ये पहला प्रोनाउन है, इसके बाद हिज फ्रेंड्स, ये नाउन जो है वो प्लूरल है, ये नाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो हमने इसको इंपॉर्टेंस देनी। ईदर और के साथ जब दो एंटिटीज को मिलाओगे तो सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देंगे according to the nature, function and formation of the second pronoun or noun or entity we have to supply the verb। और यहां पर बीटा में हैज लिखा है जो कि सिंगुलर नाउन्स के साथ आता है, क्योंकि हैज हमेशा सिंगुलर एंटिटीज को सप्लाई किया जाता है, तो यहां पर एरर लगता है। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब यहां हैज की बजाय क्या होना चाहिए, यहां पर हैव होता, तो फिर ये बिल्कुल कंपैटिबल होता। चूंकि डिसहार्मनी आई है, इम्बैलेंस सिचुएशन है, डिसइक्विलिब्रियम यहां पर क्रिएट हुआ है, जब भी डिसइक्विलिब्रियम आएगा एग्रीमेंट की बजाय डिसएग्रीमेंट होगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब में जो ही डिसएग्रीमेंट आता है वहीं पर स्टेटमेंट कोलैप्स कर जाती है। तो देखते हैं कंप्यूटर हमारी क्या मदद करता है, लेकिन बिफोर वी चेक it, we have to complete the statement. Either he or his friends has called me bad names, idiomatic expression है call bad names, I am going to complain against this। so बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट, उसमें मौजूद सारी की सारी ऑप्शन परफेक्टली ओके हैं, और सिर्फ बीटा में एरर लगता था। कंप्यूटर से हेल्प लेते हैं कि वो किसे सपोर्ट करता है, वो भी बीटा को ही प्रोजेक्ट करता है कि यहाँ पर एरर अकरेंस हुई है, उसने डिटेक्शन दी है कि बीटा में एरर है। इन दिस वे आपने डिटेक्ट किया है एरर को। एक और एमसीक्यू में बढ़ते हैं। टेक्निकली डियर स्टूडेंट्स, आप एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 है और इसको पढ़ लेते हैं। प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम को आप अंडरलाइन भी कर लें अपने पास में या ब्लॉक कर लें अपने पास में। प्लेंटी ऑफ टाइम एक फ्रेज है, बिकॉज देर आर 3 वर्ड्स ऑल टुगेदर, प्लेंटी ऑफ एंड टाइम, देर आर 3 वर्ड्स ऑल टुगेदर, और ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो इस वक्त एक नाउन फ्रेज बन जाते हैं और ये सिंगुलैरिटी को प्रोजेक्ट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेजेस में
हमने नाउन फ्रेज भी हैं, वर्ब फ्रेज भी हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी हैं, डिफरेंट फ्रेजेस हैं, तो हमने ये सारी स्टडी कर रखी हैं। आप इनको दोबारा से पढ़ें, अच्छे तरीके से गो थ्रू करें और हमारे साथ जो है वो डिटेल्ड लेक्चर में जो है वो हमें ज्वाइन करें, ताकि आप सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और उन लेक्चर्स, उन टॉपिक्स के तमाम कंटेंट्स को बहुत अच्छी तरह गो थ्रू करके फिर गेट थ्रू करने की पोजीशन में जाएं। तो इसके लिए हम डिटेल लेक्चर में जाएंगे, लेकिन फिल वक्त हम बात कर रहे हैं प्लेंटी ऑफ टाइम एक फ्रेज है और सिंगुलैरिटी को ये प्रोजेक्ट करती है। बिफोर हिज सर्जरी इज ओवर, बिफोर हिज सर्जरी ये भी एक फ्रेज है और इसको इसका वर्ब सप्लाई कर दिया गया है इज की शक्ल में, ओके। लेकिन प्लेंटी ऑफ टाइम को कोई वर्ब नहीं दिया गया, क्योंकि दो फ्रेजेस को एक सिंगल वर्ब नहीं सप्लाई किया जा सकता, तो प्लेंटी ऑफ टाइम का वर्ब मिसिंग है और वो अपेरेंटली कुछ यूं बन रहा है, प्लेंटी ऑफ टाइम का वर्ब जो है वो इज बना दिया गया है, जबकि प्लेंटी ऑफ टाइम सिंगुलर है और आर प्लूरल है। यहां पर डिसहार्मनी है। प्लेंटी ऑफ टाइम इज होना चाहिए था, प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, लेट्स हैव अ बेनेडिक्शन। ये पूरा स्टेटमेंट है और सारी स्टेटमेंट ठीक है जी। तो हम बात ये कह रहे थे कि इज जो है यहां पर वो सिंगुलर वर्ब हमें रिक्वायर्ड है, यानी यहां आप अगर इज सप्लाई करते हैं तो फिर स्टेटमेंट बिल्कुल एरर फ्री होती। प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल होना है, बीटा में एरर है डियर स्टूडेंट, लुक दिस इज द एरर। नाउ अनदर एमसीक्यू नंबर 4, और यहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। 4 अल्टरनेटिव सेंटेंसेस हैं और उनमें से एक सेंटेंस जो है वो परफेक्ट है, 3 में एरर है। हमने डिटेक्ट करना है कि जो परफेक्ट है वो कौन सा है और 3 में एरर्स कहां कहां हैं। लुक, मैं पहले सोल्यूशन देता हूं आपको। चार्ली इसमें बेस्ट ऑप्शन है, और ये बेस्ट क्यों है और बाकी वर्स्ट क्यों है। लुक, एन एमॉर्फस मैस, मैस को जो है वो आपने सिंगुलर कंसीडर कर लिया, एक आपने एंटिटी कंसीडर कर लिया, और एन आपको मालूम है सिंगुलर थिंग्स के साथ ही प्लेस किया जाता है। ए और एन अकॉर्डिंग टू वॉइस जो है वॉवल प्लेस किया जाता है, तो एमॉर्फस के साथ जो है वो एन आना था। एन एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स, आपने सेल्स को इग्नोर कर देना है कि ये प्लूरल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट या चीफ वर्ड या की वर्ड या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इस सारे सब्जेक्ट वर्ड के अंदर, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एन से शुरू हुआ सेल्स पर खत्म हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीफ वर्ड है वो क्या है, मैस, और वो क्या है, एन एमॉर्फस मैस, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी एन एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स इज। मैंने इज के साथ इसको ब्रिज कर दिया और बिल्कुल ठीक किया। इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं अल्फा में एरर देखने। एन एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स आर में एरर है, आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि मैस सिंगुलर है। बीटा, एन एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स वर भी प्लूरल है, और वैसे भी ऐसी साइंटिफिक स्टेटमेंट्स को जो है वो प्रेजेंट में ही कंसिडर किया जाता है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं लेकर जाते। डेल्टा, एन एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स हैज, यानी यहां पर हमें किसी किस्म की पोजेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जनरल ट्रूथ है, इसे सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर के साथ ही डिस्कस किया जाता है। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वन, और हमें डिटेक्ट किया है बेस्ट ऑप्शन चार्ली को। एक और एमसीक्यू देखते हैं डियर स्टूडेंट इसी इंस्ट्रक्शन के अंडर, और ये भी देखते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन अल्फा है तो क्यों है। दिस एंटीबायोटिक, दिस आपको मालूम है एक ऐसा प्रोनाउन है जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और हाउ मेनी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर देयर, दे आर 4 इन नंबर। हाउ मेनी, दे आर 4 इन नंबर। और नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए, नियरर ऑब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप दिस बोलते हैं, दिस एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक सिंगुलर हुई, दिस से पता चला दिस एंटीबायोटिक ये नाउन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब जो है वो डिस्ट्रॉयज, एस फॉर्म आनी है प्रेजेंट टेंस में, डिस्ट्रॉयज रेड कॉर्पसेल्स इन द ब्लड, एंड कॉजेज भी प्रेजेंट टेंस को शो करता है, क्योंकि सिंगुलर एंटिटी है दिस एंटीबायोटिक, उसके साथ वर्ड डिस्ट्रॉयज आएगा और कॉजेज आएगा, ओके। इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है, कॉजेज परनिशियस एनीमिया। बीटा में एरर क्या है, दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय, एंटीबायोटिक सिंगुलर है लेकिन यहां एस लगना था वो नहीं है, मिसिंग हो गया। चार्ली, दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय रेड कॉर्पसेल्स इन ब्लड एंड कॉजेज, यहां पर एरर आ गया, कॉजेज होना था, कॉज नहीं होना था। डेल्टा, दीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है हम फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स ज्यादा हैं, इसलिए उनके साथ दीज
जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो गया, फाइन, ये हो सकता है, लेकिन और आगे डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय भी बिल्कुल उसके कंपैटिबल है। डिस्ट्रॉय रेड कॉर्पसेल्स इन द ब्लड एंड कॉजेज, यहां एरर आया है, यहां एस नहीं आना था, यहां पे कॉज आना था, और जैसे कि यहां डिस्ट्रॉय है तो फिर यहां पे कॉज है, यानी पैरेललिज्म को मेंटेन नहीं किया गया, पैरेललिज्म को वायलेट किया गया। अगर हमने प्लूरल नाउन है दीज एंटीबायोटिक्स, तो उसके साथ अगर हमने डिस्ट्रॉय लगाया है तो फिर कॉज आना चाहिए था। ओके डियर स्टूडेंट, इसे एक और एमसीक्यू में चलते हैं। लुक एमसीक्यू नंबर 6, यहां बेस्ट ऑप्शन देखते हैं डेल्टा है, और वो क्यों है? डज, आपको मालूम है डू और डज जो है इंट्रोगेटिव फॉर्मेट के लिए यूज किए जाते हैं, तो डज जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। एनीबॉडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और उसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए डज बिल्कुल ठीक है। डज एनीबॉडी? नो। और यकीनन इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में हम बेयर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं हो सकती, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं हो सकती, यहां पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म यूज नहीं हो सकती, यानी यहां पर एस फॉर्म यूज नहीं हो सकती, कोई भी एडिशनल चीज यहां पे नहीं आएगी। लुक, डज एनीबॉडी नो व्हाई द लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स प्लूरल हैं, वाई द लैटिट्यूड्स क्लोज, क्लोज प्लूरल है, क्योंकि अगर क्लोज सिंगुलर होता फिर क्लोजेस होना था। क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड, क्योंकि लैटिट्यूड्स प्लूरल हैं इसलिए आर आएगा, आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। ओके, ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अल्फा में जाके एरर देखते हैं और उसे हाईलाइट करते हैं। डज एनीबॉडी नोज, यहां पर इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नो आना था, एस नहीं आना था। बीटा, डू एनीबॉडी, एनीबॉडी के साथ डू कंपैटिबल नहीं होता, डज होना था, यहां एरर है। चार्ली में डज एनीबॉडी नो व्हाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर इज, इज नहीं आर, क्योंकि लैटिट्यूड्स प्लूरल हैं, उसके साथ आर आना था। डियर स्टूडेंट, एक और एमसीक्यू देखते हैं, नंबर 7 में चलें। यहां पर देखते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा, और वो क्यों है? ईच, ईच की बात करते हैं, ईच हो या एवरी हो, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि ईच और एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर का सा बिहेव करना है। तो आगे देखें, ईच प्लांट है, ईच फैक्ट्री है, ईच एग्रीकल्चरल कम्यून है, इन सब के साथ हम ईच को सप्लाई करेंगे वर्ब सिंगुलर हैज, ठीक है। ईच एग्रीकल्चर कम्यून हैज अ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन एंड ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज, ट्रीटमेंट को प्लूरल नहीं बनाते, ट्रीटमेंट का सिंगुलर प्लूरल सेम है, इज ही, यानी ट्रीटमेंट ही होगा, ट्रीटमेंट्स नहीं होगा, और इसके बाद इज लगेगा। इज इंटायरली फ्री फॉर एवरी चाइनीज, ये बिल्कुल ओके स्टेटमेंट है। अल्फा में एरर देखते हैं, ईच प्लांट फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैव नहीं हैज आएगा। बीटा, ईच प्लांट फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैज अ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन एंड ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आर नहीं इज आएगा। ओके, और चार्ली में देखते हैं, ईच प्लांट फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैज अ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन एंड ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स नहीं होता, ट्रीटमेंट होता है, प्लूरल एस लगा के नहीं बनाना। बाज ऐसे नाउन है जिनकी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनती। So dear student, we have discussed about all the 4 options and delta is to be the best one just because of free from all types of errors. Another MCQ number 8, और यहां देखते हैं बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है, क्यों है? आई एक डिफरेंट एंटिटी है, माई ब्रदर एक डिफरेंट एंटिटी है, दोनों को एंड से आपने ज्वाइन किया। जब दो डिफरेंट एंटिटीज को आप एक दूसरे के साथ एंड के मदद से जोड़ेंगे तो फिर उन्हें प्लूरल कंसीडर करेंगे तो आर आएगा। आर रेडी टू प्ले बट यू और योर ब्रदर, जब आपने और दे दिया तो फिर ऑप्शन दे दी, यानी दो में से कोई एक, यू और योर ब्रदर, तो योर ब्रदर के बाद जो है चूंकि ये सिंगुलर है अवर ब्रदर या योर ब्रदर, तो फिर ब्रदर चूंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हैज आएगा, हैज टू ज्वाइन अस टू। इन दिस वे हम देखते हैं अल्फा ऑप्शन में एरर क्या है, आई एंड माई ब्रदर, आई एंड माई ब्रदर इज, यहाँ इज नहीं आर आना था। बीटा, आई एंड माई ब्रदर आर, ओके रेडी टू प्ले बट यू और योर ब्रदर हैव नहीं आना, हैज। चार्ली, आई एंड माई ब्रदर एम नहीं आर आएगा। ओके, नाउ अनदर एमसीक्यू नंबर 9, बेस्ट ऑप्शन देखें अल्फा। द नंबर ऑफ, याद रखें जो ही द नंबर ऑफ होगा ये सिंगुलर होगा, द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, और मैं यहां लिख रहा हूं ए नंबर। ओके, द नंबर हमेशा सिंगुलर कंसीडर करेंगे और ए नंबर को आप प्लूरल कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये प्लूरल होगा। ओके, चलें जी,
अब द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज़, चूंकि द नंबर सिंगुलर है, रोड एक्सीडेंट्स प्लूरल हैं, आपने एक्सीडेंट्स को इग्नोर करना है वर्ड को, और द नंबर को ध्यान में रख के वर्ब सप्लाई करना है हैज़, यानी कि द नंबर सिंगुलर तो हैज़ भी सिंगुलर, दोनों कंपैटिबल हैं। हैज़ इंक्रीज्ड रिसेंटली वेयर अ नंबर ऑफ पीपल, लुक आ नंबर, मैंने अभी बताया आ नंबर जो है वो प्लूरल होता है, आ नंबर प्लूरल है, अ नंबर ऑफ पीपल, तो इसके बाद हैव आएगा, बिल्कुल ठीक है, हैव लॉस्ट दियर लाइव्स, चूंकि पीपल ज़्यादा हैं तो इनके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव दियर आएगा, हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, योर नहीं आएगा, आवर नहीं आएगा, पीपल के लिए दियर आएगा, ठीक है, और उनकी लाइफ प्लूरल होगी तो लाइव्स होगा। ओके, नो एरर इन अल्फा। बीटा में देखते हैं, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैव नहीं हैज आना था। चार्ली, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हैज नहीं हैव आएगा। डेल्टा, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हैव लॉस्ट हिज नहीं दियर लाइव्स। ओके, लास्ट MCQ नंबर 10, लुक द वेरी first statement is the best one just because of no error. Neither governments nor the people. Neither और nor के साथ जब आप दो नाउन को मिलाएंगे, हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, तो सेकंड वाले नाउन को इंपॉर्टेंस देंगे और वो है द पीपल, और वो पीपल है प्लूरल और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा हैव डन एनीथिंग टू एम्यूलोरेट द एबरेशंस इन देयर ट्रैफिक सिस्टम। बीटा में एरर देखते हैं, नीदर गवर्नमेंट nor the people has नहीं have। Charlie, neither government nor the people have done anything to ameliorate the aberrations in his नहीं in their traffic system होगा, क्योंकि people के लिए हम their यूज करेंगे, his नहीं करेंगे। Delta, neither government nor the people have done anything to ameliorate the aberrations in its नहीं in their traffic system। ओके, क्योंकि people living है उनके लिए its नहीं आ सकता क्योंकि ये न्यूटर नाउन नहीं है। My dear student, in this way we have talked and discussed about some of the errors in some of the statements, and we have detected many of the options which have error in them. Because of those errors the statements collapsed. हमने देखना है इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, according to that instruction we have to move ahead. I wish you best of luck. Thank you very much.